Jai Hind everybody. Good evening. Till now we have seen various methods like elimination, substitution and cross multiplication method, and some concept, some examples. And now we are going to deal or going to solve some different kinds of equations which you can see. So the method we'll use, that is old one which we have studied in the previous lectures. So you can see what is written. Solve the following equation by reducing them to a pair of linear equation. आप लोग को पता है कि pair of linear equation कैसा होता है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0. बट यहाँ पे आप देख सकते हो it is not looking like that. ठीक है, तो that is why it is mentioned by reducing them to a pair of linear equation. तो हम इसे क्या करेंगे, pair of linear equation में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए क्या करना है, let us proceed. So first of all, equation is given 1 upon 2x plus 1 upon 3y equal to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y equal to 13/6. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप देखो कि 1 अपॉन जो x है वो यहाँ पे भी है, नीचे भी आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन x, एंड 1 अपॉन जो y है जो यहाँ पे है वो नीचे भी दिख रहा होगा 1 अपॉन y. ओके, 1 अपॉन x it is also given here and 1 upon y is also given here. So what we'll do, we'll assume, suppose 1 upon x is a and 1 upon y is b. Fine. So now we'll put the value 1 upon x. 1 upon x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और यहाँ 1 upon 2 तो है ही. This is 1 upon 2 and 1 upon x. Okay, so it will be now, it will be look like a upon 2 plus b upon 3 is equal to 2. Okay, still this equation is not looking like a linear equation. So what we'll do, we'll do the cross multiplication. 3a and 2b, 3 to the 6 equal to 2. Still 6 is given, so we'll multiply here. So it will be now 3a plus 2b, 6 to the 12, equation number 1. Okay, the same we'll do in this equation. It is 1 upon 3x 1 upon 2y is equal to 13 upon 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 upon x की वैल्यू तो a है, तो it will be a upon 3 plus b upon 2 is equal to 13 upon 6. फाइन, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2a 3b, तो 2a प्लस 3b अपॉन 3 to the 6 is equal to 13 upon 6. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, 6 and 6 it will be cancel. So we'll have equation 2a 3b is equal to 13, equation number 2, and equation number 1 is 3a 2b is equal to 12, equation number 1. So now you can see this equation is looking like a linear pair of equation. So now you can use any method to find out a and b. First of all we'll find out a and b, and then we'll find out x and y. Okay, so first of all
हमें क्या करना है कि कब जो मेथड हमने पढ़ी है वही लगानी है, लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई एम यूजिंग एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन के लिए क्या करना होता है कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट लाइक ए और बी, आइदर ए और बी हमें क्या इक्वल करना होता है। तो मैं यहाँ पे ए इक्वल कर रहा हूँ, फाइन। सो ए इक्वल करने के लिए मुझे जो ए का कोफिशिएंट है 3, उसमें इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो यहाँ इक्वेशन 2 में ए का कोफिशिएंट 2 है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस मल्टीप्लाई 3 टू द 6a, 3 to the 9b, 13 to the 39. Fine. Again multiply this 3 to the 6a, 2 to the 4b, 12 to the 24. आपको पता है एलिमिनेशन कैसे करते हैं। अब एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जहाँ साइन कुछ नहीं, दैट विल बी प्लस, चेंज इट टू माइनस, अगेन प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, सेम साइन और सेम नंबर, ऑपोजिशन विल बी कैंसल। 9 minus 4 will be 5b, 39 minus 24 it will be 15. So divide it, b is equal to 15 upon 5, 5 3 the, we'll get b is equal to 3, we'll get the value of b. b की वैल्यू मिली है। अब आप इसे इक्वेशन 1 या 2 में रख सकते हो। तो हम इसे इक्वेशन ए में रख रहे हैं, सॉरी ए में नहीं, 1 में, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 3a 2b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12, फाइन। Now 3 8 2 3 the 6 is equal to 12. 3 8, this 6 will go that side, it will be minus 12 minus 6, 3 a it will be 6. Now we'll divide 6 by 3, 6 divided by 3, 3 2 the, so we'll get the value of a, that will be 2, a is equal to 2. ए की वैल्यू 2 मिली, बी की वैल्यू 3 मिलेगी, लेकिन हमें ए और बी थोड़ी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट दैट। ओके, सो हियर वी हैव अज्यूम्ड, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, 1 upon x is equal to a. So 1 upon x is equal to a, 1 upon x is equal to a. So the value of a will put here. What is the value of a? That is 2. Take this x here. So x will be 1 by 2. X will be 1 by 2. And like this we have to find out y also. Okay. So let us find out y. So same we have assumed 1 upon y equal to b. Okay. So 1 upon y is equal to, what is the value of b? That is 3. Okay, so I will write here, so 1 upon y is equal to 3, because we know that 1 upon y equal to b and the value of b is 3, so we'll put 3, we'll take y here, so y will be 1 upon 3. सो हमें x मिला, पहले हमें x मिला था जो ये रहा, और ये हमें y मिला। ओके, सो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वी हैव टू मेक दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें इससे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है। तो जो भी सेम वैल्यू है, लाइक 1 upon x इज गिवन, 1 upon x इज ऑल्सो गिवन हियर, 1 upon y एंड 1 upon y। तो 1 upon x को आप a ले लेंगे, 1 upon y को आप b ले लेंगे, फिर इक्वेशन 1 और 2 में रख देंगे। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेना है, इससे आपको इक्वेशन मिलेगा इस फॉर्म में, विच इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। द सेम विल डू इन द इक्वेशन नंबर 2, जिससे आपको एक इक्वेशन और मिलेगा,
दैट इज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगाएंगे तो आपको मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 and 2, एंड इट इज इन द लीनियर पेयर form. You can see it is in the linear pair equation and it is in the form of that. We have reduced and we have prepared the form of linear pair of equation. अब सेम मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ तो ए को सेम बनाऊंगा तो ए के कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 और 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मुझे 6 से इक्वल मिल गया और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज किया। 9 - 4 विल बी 5b, 39 - 24 विल बी 15। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, तो b क्या मिला हमें 3 मिला। अब सेम हम आपको पता है एलिमिनेशन में क्या करते हैं, तो ये b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देने का। व्हाट इज द इक्वेशन 1? 3a, इक्वेशन 1 दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ओके, 3a वी हैव टू फाइंड आउट a, पुट वैल्यू b, तो b इज 3 टू द 6 विल गो दैट साइड, 12 minus 6 विल बी 6, 6 विल 3 डिवाइड 6, तो 3 टू द 6, a इज इक्वल टू 2। अभी अक्सर हम लोग ये करते हैं कि ए और बी फाइंड करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है। अभी हमें ए और बी मिला है, वी विल फाइंड आउट एक्स एंड वाई। सो हमने एज्यूम किया हुआ है, देखिए 1/x इक्वल टू ए, 1/y इक्वल टू बी। तो लेट अस यूज इट। 1/x इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, तो पुट द वैल्यू 2। देन क्या करेंगे कि x को यहाँ लाएंगे और 2 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, देन x इज इक्वल टू 1/2 और 1/y इक्वल टू क्या है, b है, तो b की वैल्यू क्या है 3, तो 1/y इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ देखिए 1/y इक्वल टू 3, फिर से वही 3 जाएगा डिनोमिनेटर में और y यहाँ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/3। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। x ये रहा आपका और y ये रहा आपका, और यू नो दैट यू कैन चेक इट, यू नो दैट हाउ टू चेक। ओके, ओके, सो अब हम इसी टाइप का एक और सम देखेंगे, विच इज एक्चुअली यू कैन सी नंबर 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो सेम इसमें भी यही करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको, बट इसको आपको पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसमें, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में। फाइन, लेट्स सॉल्व। तो यहाँ पे देखो मैं 2 इसको थोड़ा सा अलग लिखूँ, और मैं अगर देखो 2 के मल्टीप्लाई में 1 लिखूँ अगर मैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 × 1 विल बी 2 ही। ओके, so now √x plus again same here 3 × 1 √y equal to 2. Okay, what I told you, that suppose what 1/√x equal to a and 1/√y equal to b। क्यों? क्योंकि 1/√x इस इक्वेशन में भी है, यहाँ भी है, 1/√y यहाँ भी है और 1/√y यहाँ भी है। अब देखो 1 आप बोलोगे यहाँ तो 2/√x यहाँ 4/√x है। इट इज नॉट लाइक दैट, 1 तो मल्टीपल में, सबके मल्टीपल में होता है, तो इसलिए मैंने आपको मल्टीपल करके दिखाया यहाँ पे। फाइन, सो नाउ इट विल बी 1/√x विल बी a, तो इक्वेशन विल बी 2a प्लस 1/√y विल बी b, तो इक्वेशन विल बी 3b इज इक्वल टू 2। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 1। ओके, द सेम विल डू इन दिस 4/√x। 4/√x मतलब ये 1/√x हो जाएगा, तो इट विल बी 4a एंड -9b is equal to -1, equation number 2. Now we got the linear pair of equation, you can see. Okay, you can find out with the help of any method. We know the method like cross multiplication, elimination, substitution. ठीक है, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पहले a की कुछ वैल्यू मिलेगी, देन b की कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू को इसके साथ 1/√x इक्वल टू a, 1/√y इज इक्वल टू b के साथ कंपेयर करना है। ओके, ये आपको खुद करना होगा, ट्राई बाय योर सेल्फ। ओके, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट मी ओवर देयर। ओके, एंड वन मोर सम आई एम गिविंग यू इन द होमवर्क, दैट इज 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13
एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। आपको पता है मैंने ये पहला सम सेम ऐसा ही किया था। तो आपको क्या करना है कि 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ओके, सो ये भी आप मुझे इसका भी मुझे आंसर बताइए आप। और एज यू नो दैट कि आपको क्या करना है, आप सॉल्व करके आप आंसर खुद भी चेक कर सकते हो दैट गिवन इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो दिस इज हाफ सम एंड दिस इज फुल सम। दिस इज योर कंप्लीट होमवर्क। ओके, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट मी ओवर देयर, आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आज हमने जो किया दैट इज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, जैसा नहीं था वो उसे रिड्यूस किया और उसको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाया और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस लिए। ओके, तो टुडे सेशन वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली। टिल देन घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।